we do Fourier transform. After Fourier integral, now we do Fourier transform of the function. Now again we have ft real function that is defined and piecewise continues on interval minus infinity to infinity. We have ft function that is defined and continues in interval minus infinity to infinity, and this is absolutely convergent. ये हमारा absolutely convergent है again in the interval minus infinity to infinity. Then Fourier जो हमारी क्या होती है ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन, कौन सा फंक्शन ft फंक्शन जो हमने अभी डिस्कस किया, अभी डिफाइंड और कंटिन्यूस एंड क्या है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है in minus infinity to infinity. Then Fourier transform of this function is defined as Fourier of a function is equal to from minus infinity to infinity. What is ft function according to question, and here e raised to power iota st dt और our variable is t. So ft function के according Fourier transform ft हमने फाइंड करनी है. Fourier function जो है यहाँ पे आ जाएगा और साथ में आना है e raised to power iota st dt. So this is the Fourier of a function ft, जिसको जब हम फाइंड कर लेते हैं then this further is equal to some function g of s. then हमारा ये फंक्शन इन फॉर्म ऑफ s आ जाता है when we are क्या है finding Fourier of a function. So for inversion, now for its inverse Fourier transform. अब inverse Fourier transform में क्या होगा, यहाँ पे हमने Fourier of a function फाइंड की है तो अब ये हमारा उस साइड चला गया तो यहाँ पे क्या बन गया Fourier inverse of gs function. This means we are left with only ft function. This means in inversion we have to solve for ft function, and that is equal to 1 by 2 pi from minus infinity to infinity. Yes, यहाँ पे हमारा ft function का यहाँ पे है g of s जो हमने Fourier फाइंड करके हमारे पास आया है. यहाँ पे e raised to power iota st dt फंक्शन है और यहाँ पे e raised to power minus iota st ds हमारा जो है वो वेरिएबल है. So this is the inversion formula in which we are using 1 by 2 pi. This can be 1 by under root 2 pi according to question. वो भी हम ले सकते हैं minus infinity to infinity g of s e raised to power minus iota st ds. So this is inversion जो है हमारी Fourier transform. Now we have to solve for this question, find Fourier transform of, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फंक्शन हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक 1 और 0. 1 कब है when modulus of t less than alpha. इसका मतलब क्या होता है, जब हम मॉडुलस को ओपन करेंगे इसका मतलब क्या है t lies between minus alpha and alpha, then our value of function is 1. इसका क्या मतलब होता है मॉडुलस ऑफ t कि एक बार t greater than alpha और एक t क्या है less than minus alpha. So for these two equalities we have two functions, एक 1 and 0. Now we have to find Fourier of a function. We know Fourier of function is minus infinity to infinity ft e raised to power iota st dt. पर फंक्शन जो है फर्दर जब हमारा किस तरह क्या है उसके अकॉर्डिंग हमें इंटरवल ब्रेक करना पड़ेगा. तो हमारा क्या पार्ट आ रहा है, दिस इज फॉर माइनस अल्फा टू अल्फा, दिस इज फॉर ग्रेटर अल्फा एंड दिस इज फॉर लेस देन माइनस अल्फा. दिस मीन्स वी स्टार्ट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी जो हमारी लोअर लिमिट है पर माइनस अल्फा तक ब्रेक करेंगे. देन वी क्या है ब्रेकिंग माइनस अल्फा टू अल्फा एंड देन फॉर फर्दर क्या है ग्रेटर देन अल्फा अप टू अपर लिमिट जो है हमारी इन्फिनिटी. सो वी हैव 3 क्या है पार्ट्स में जो फंक्शन हमारा डिफाइंड हो गया. फॉर दिस पार्ट यहाँ से चल रखते हैं फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या है 0. फॉर दिस पार्ट दिस वन आवर फंक्शन इज 1 एंड फॉर दिस पार्ट अगेन वी हैव फंक्शन इज इक्वल टू 0. तो जो साथ में e raised to power iota st dt फंक्शन है वो हमारा इस आएगा. हम फंक्शन की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. सो वी आर लेफ्ट विद ओनली जो हमारे सेंटर में जो फंक्शन है उसको है. नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस एंड अवर वेरिएबल इज t. सो e raised to power iota st की क्या हो जाती है e raised to power iota st upon iota s because t is the variable, a constant is iota s. Now we have to substitute limits minus alpha and alpha upper limit and lower limit. So हम सबसे पहले क्या करते हैं 1 upon iota s जो है कॉमन ले लेते हैं. नाउ t की वैल्यू को अल्फा सब्स्टिट्यूट कर दिया, t की वैल्यू को माइनस अल्फा सब्स्टिट्यूट कर दिया. नाउ दिस इज ऑफ द टाइप we have sin of theta
आता है, दैट इज 2/SL sin SL। नाउ इस क्वेश्चन में फर्दर क्या था, पहले तो हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है और हमें फर्दर 2 पार्ट्स और पूछे गए हैं, तो उसमें वो क्या कह रहे हैं, यू हैव टू सॉल्व फॉर 0 to infinity sin S/S ds एंड फ्रॉम -infinity to infinity sin alpha s cos ST/S ds। इसके लिए हमने सॉल्व करना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ds आ रहा है, जिसमें इन्वर्शन फार्मूला हमने अप्लाई करना है। नाउ यूजिंग इन्वर्शन फार्मूला, सो इन्वर्शन फार्मूला में क्या होता है, हम क्या फाइंड करते हैं, ft फंक्शन दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई -infinity to infinity g of s फंक्शन जो हमारे पास आया है e रेज़ टू पावर, यहाँ पे अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो वहाँ पे हो जाता है माइनस आइटा एस टी डी एस। तो हमने वो फॉर्मूला लिखा 1/2 पाई e रेज़ टू पावर माइनस आइटा एस टी डी एस, और जो हमारा फंक्शन g ऑफ s है उसकी वैल्यू हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी 2/s sin s। नाउ नेक्स्ट फर्दर क्या है, हमारा क्या है, वी हैव टू सॉल्व फॉर, अगर हम यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट नहीं आ रहा, तो जो हमारे यहाँ पे 2 पाई है उसकी दूसरी साइड लेके जिस साइड हमारा ft फंक्शन है, सो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 2 पाई ft बन गया और ये क्या हो जाएगी, जिसमें हमने अगेन e रेज़ टू पावर माइनस आइटा थीटा को ब्रेक कर दिया cos थीटा माइनस आइटा sin थीटा। नेक्स्ट दोनों टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट टर्म, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास सेकंड टर्म, और साथ में हमारे पास जो 2 है वो दोनों साइड क्या हो रहा है, हमारा कैंसिल हो रहा है, ये हमने कैलकुलेशन। अब इसमें क्या है, अगर हम इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करते हैं हमारा, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास, -infinity to infinity sin s अल्फा sin s t, तो ये हमारा पार्ट है इसमें, और ये हमारा क्या है, रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट में sin s अल्फा sin s t है और रियल पार्ट में है sin s अल्फा cos s t, और क्वेश्चन की डिमांड क्या है, हमें cos s t वाला पार्ट चाहिए, दिस मींस वी विल कंपेयर ओनली रियल पार्ट। सो रियल पार्ट को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे रियल पार्ट तो पाई ऑफ t है हमारे पास, और यहाँ पे क्या है -infinity to infinity sin s अल्फा cos s t ds by s। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमें देखते हैं कि हमारे पास क्या है, हमें यही चाहिए ना -infinity to infinity sin s अल्फा cos s t by s ds, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे पाई ऑफ t हमारे पास वैल्यू आ गई फॉर सेकंड टर्म। नेक्स्ट इसके बाद हमें क्या करना है, इस पार्ट के लिए फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करते हैं, हमारे पास क्या है इसमें अल्फा नहीं, दिस मींस अल्फा इज 1, और cos फंक्शन भी नहीं है, इसमें t क्या है 0, बिकॉज वी नो cos इज क्या होता है 1 होता है। सो हमने क्या किया, इसी पार्ट में हमने अल्फा को 1 लिया, ब्रैकेट ऑफ sin s, इसको 0 लिए तो ये cos 0 क्या बन गया दिस वन, एंड ये हमारे पास क्या बन गया पाई f ऑफ 0, और f ऑफ 0 फंक्शन हम यहाँ से देखेंगे भी हमारे पास वैल्यू क्या आती है उसके अकॉर्डिंग क्या, तो वो हमारे पास क्या है 1, सो हमारे पास क्या रह गया है पाई f ऑफ 0 इंटू क्या है पाई इंटू 1 दैट इज पाई। नाउ फर्दर क्या है, इसको हम इंटरवल को ब्रेक कर देते हैं -infinity to infinity, दिस इज 2 times 0 to infinity, और 2 हम इससे ले आए, तो हमारे पास जो वैल्यू हमें रिक्वायर्ड थी फर्स्ट पार्ट के लिए वो हमारे पास हो। तो इसका मतलब क्या है, वी हैव टू चेक हमें फंक्शन क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया, तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रियल पार्ट चाहिए। फिर उसके बाद फर्दर क्या है, हमारे पास सेकंड पार्ट आ गया, पर फर्स्ट पार्ट के लिए हमें अल्फा नहीं चाहिए, cos फंक्शन नहीं चाहिए, तो हमने सिलेक्ट करनी वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड जो हमारा cos फंक्शन खत्म हो जाए। तो cos फंक्शन क्या होता है, व्हेन वी cos 0 is 1, so we are selecting t is equal to 0, so we have क्या है दोनों पार्ट का जो है रिजल्ट आ गया बाय फोरियर एंड इन्वर्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ही हमने फाइंड करनी है, और हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है g of s। g of s इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा मॉडुलस ऑफ s। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे पास सिर्फ s नहीं है, मॉडुलस ऑफ s है, दिस मींस वी नो मॉडुलस का क्या मतलब होता है, वी हैव टू वैल्यूज नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब व्हेन लैम्डा इज लेस देन 0, एंड व्हेन पॉजिटिव क्या है जब हमारे पास लैम्डा क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 0। तो हम यही चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है एस की फॉर्म है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे हमारे। नाउ फर्स्टली फोरियर हमारा इन्वर्शन फॉर्मूला क्या होता है, फोरियर इन्वर्स ऑफ g ऑफ s फंक्शन दैट इज किसके इक्वल होता है 1/2 पाई फ्रॉम -infinity to infinity
वैल्यू ऑफ फंक्शन जो हमारी है, साथ में क्या था इन्वर्शन फॉर्मूले में हमने डिस्कस किया था माइनस आइटा एस टी डी एस। सो एज इट इज हमें फंक्शनल वैल्यू लिख दी वहां पे और ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा एस टी डी एस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व फॉर दिस मॉडुलस। तो मॉडुलस का क्या है, मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड 0 टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है, जब हम 0 से पीछे लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं देन वी हैव नेगेटिव वैल्यूज, एंड जब 0 से आगे की तरफ जा रहे हैं देन वी हैव पॉजिटिव वैल्यूज। वी हैव 2 पार्ट्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पार्ट। दिस मींस फॉर दिस इंटरवल फॉर माइनस इन्फिनिटी टू 0 मेरे पास ये मॉडुलस ऑफ एस है माइनस एस आ जाएगा और इसमें मॉडुलस को हटा देती हूँ क्योंकि दोनों ही ई फंक्शन है तो हम पावर को भी कंबाइन कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा ऑफ माइनस साथ में माइनस आइटा एस। सेकेंड टाइम जब 0 से इन्फिनिटी किया है तो हमारा मॉडुलस ऑफ एस एस ही रह जाएगा, पॉजिटिव आएगा। तो फिर अगेन कंबाइन कर दिया पर यहाँ पे माइनस लैम्डा एस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आइटा एस टी है। हमें सिर्फ इसके लिए सॉल्व करना है, ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा मॉडुलस वाला फंक्शन यहाँ पे डिस्कस हो रहा है तो यहाँ पे एस और यहाँ पे माइनस एस डिस्कस करना। नाउ मॉडुलस खत्म हो गया, नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें से एस कॉमन लेंगे बिकॉज अवर एस क्या है, अब इसमें डी एस एस वेरिएबल, तो हमने इसको बना लिया भी लैम्डा माइनस आइटा टी एस बाहर है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सिमिलरली और लिमिट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई रेज़ टू पावर जो भी एंगल है ये कांस्टेंट है उसका, ई रेज़ टू पावर अगर 2x है तो उसकी क्या आ जाएगी, ई रेज़ टू पावर 2x अपॉन 2। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है एस, तो ये कांस्टेंट है, नीचे आ गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, माइनस ऑफ लैम्डा प्लस आइटा बिकॉज एस इज द वेरिएबल। अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले 0 दिया, ई रेज़ टू पावर 0 हमारा आ जाएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी और ये लोअर लिमिट का नेगेटिव साइन। सेम इज हियर, यहाँ पे अपर लिमिट इन्फिनिटी है और लोअर लिमिट क्या है 0, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया और बीच में माइनस है। ई रेज़ टू पावर 0 इज 1, व्हाट इज ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, तो ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी इज 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी दैट इज 1 बाय इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू 0। ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी इज 1 बाय इन्फिनिटी, मतलब दिस इज 1 बाय इन्फिनिटी एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ गया 1, ये टर्म खत्म हो गई हमारी, यहाँ से एक टर्म आई तो ये टर्म 0 हो गई, यहाँ से माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ई रेज़ टू पावर, तो वी आर लेफ्ट विद 2 टर्म्स। नाउ ये क्या है, a प्लस बी माइनस बी, एलसीएम ले लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा और ऊपर कैंसिल होकर हमारे पास सिर्फ लैम्डा रह जाएगा और जो 2 पाई है वो भी हमारा क्या हो गया कैंसिल। सो दिस इज ए फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन एंड इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन, जिसमें हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक चलते हैं। फंक्शन जो हमारा डिफाइंड क्वांटिटीज है आर एब्सोल्युटली इंटेग्रल, कन्वर्जेंट है हमारा इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सो वी आर सॉल्विंग फॉर फोरियर ऑफ ए फंक्शन। जो फंक्शन है, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उसको ब्रेक करके हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या सॉल्व करते हैं। और जब इन्वर्शन है देन आवर वेरिएबल इज एस, तो उसके अकॉर्डिंग 1/2 पाई तो आएगा ही आएगा, साथ में आएगा ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा एस टी डी एस। तो देन एस इज द वेरिएबल। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है उसके अकॉर्डिंग हमारा आएगा, यहाँ पे सिर्फ इन्वर्शन ही लगाना था तो उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया, मॉडुलस ऑफ जो हमारा फंक्शन है उसको डिस्कस किया। सो दिस इज फोरियर ट्रांसफॉर्म।